چل گیا اور قادر باغ کی دہلی طرف بیٹھا جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عبادت کرنے کو آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس آخری ازلیسیہ مدرسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جیت میں اور ہمیشہ کی زندگی۔ کھڑے رہیں گے تاکہ کلام کی تلاوت سنیں گے۔ ہماری بیٹی بینش خدا کے کلام کی اس تلاوت کو ہمارے لیے ادا کرے گی۔ خدا کے کلام میں سے مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 10 آیات۔ تشریف لائیے۔ خداوند کے عظیم یہ بابرکت کام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کی ہماری تلاوت پہلا یوحنا کا اتنا عام خط، اس کا پہلا باب سے لے کے اس کی 1 آیات سے لے کے 10 آیات تک۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسے ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتا ہے تاکہ ہم بھی شریک ہوں، اور ہماری شرکت باپ کے ساتھ ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تلخی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شرکت ہے اور ہم طریق میں چلتے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہم آپس میں شرکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ خدا کا پاک نام کرا سنے جانا بھائی سے برکت ہو، آمین۔ تو یاد رہیں گے دادی سنانا جب کرے گا کلام کہ ہوتے اپنے بڑے میری منت ہے تپایا ہوا کام سر تپاچ دمن چاندی سے لے کر تلوین تک اس بدن کے اندر تیری مرضی
جب تیرا خادم کا کشائی کرے تو تیرا کام تیرے لوگوں کی زندگیوں کا باسر حصہ بن یسوع مسیح آمین۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج صبح میں نے آپ سب کو سلامتی سے پایا۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو کہ آپ سب خدا کے گھر تشریف لائے تاکہ آپ خدا کا کلام یوحنا کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب آج ہمارے لیے مشعل راہ۔ میں نے یوحنا کی انجیل اور خطوط میں سے یوحنا نے جو کچھ مسیح کی بابت کہا اس میں سے جو مضمون نکالا ہے وہ ہے یسوع مسیح کی حیثیت یا مقام۔ یوحنا کی انجیل اور خطوط میں سے یسوع مسیح کا مقام خدا کے زندہ کلام میں اتم ہے، اللہ ہے، عرفہ ہے، اور آج ہم سیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں بہت شاندار پہچان ہے۔ رسول یہ فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا۔ یہ ہے یسوع مسیح عذرائے بائبل، بالخصوص یوحنا رسول کی معرفت حیثیت۔ اگلی آیات میں وہ اور وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا تھا۔ اور پھر وہ مسیح کہتا ہے وہ اپنے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی انہیں یہ گھرا ہے، یہ شرط ہے جو اس کے نام پر ایمان کا۔ نہ صرف یسوع مسیح ابن خدا بلکہ اس پر ایمان لانے والے بھی خدا کے خاندان کا حصہ۔ میں بڑی دلیری سے اپنے دوستوں کو جو سوال کرتے ہیں کہ آپ یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں نہ صرف یسوع مسیح بلکہ ہم بھی خدا کی بیٹیاں اور بیٹے۔ یہ بڑا عظیم استحقاق، یسوع پر ایمان لانے والا ہر شخص عذرائے کلام، عذرائے بائبل، عذرائے یوحنا کی انجیل اور خطوط خدا کے خاندان کا حصہ۔ اور یہ بڑی عظیم بات ہے۔ پہلا یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ذرا کھولیں اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔
यूहन्ना सबूत फराहम करता है। यूहन्ना कहता है ये जिंदगी का कलाम ऐसा है जिसे हमने सुना, कानों से सुना, आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और छुआ। चार जालियों से चौतरफा गवाहियों से यूहन्ना इस बात को महफूज करता है। वो कहता है वो जिंदगी का कलाम है, और वो जिंदगी का कलाम इस तरह से है कि हमने उसकी बात सुना, हमने उसे देखा, गौर से देखा और उसे छुआ। वो कलमतुल्लाह है, उसे गैर को मैं भी रूह अल्लाह और कलमतुल्लाह है। उसे बाइबल भी जिंदगी का कलाम कहता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा। यूहन्ना पौलुस जोर तरीके से बयान करता है कि वो कलमतुल्लाह है। यूहन्ना के खतूत ये कहते हैं कि वो खुदा का कलमा है। दूसरा नुक्ता वो मेरा और आपका मददगार है। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह की अज़्रुए मेरे और आपके लिए हैसियत क्या है। अज़्रुए बाइबल, यीशु मसीह रास्तबाज़, बाप के पास हमारा मददगार है, रास्तबाज़ मददगार। बाइबल कहती है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको हम पर यीशु मसीह बाप की गोद, यीशु मसीह बाप के साथ, यीशु मसीह बाप में। जिससे मुझे लिखा उसने बाप को लिखा, उसने कहा मैं और बाप एक है। ऐसा दावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो रास्तबाज़ है। उसके बारे में दुनिया की तालीमात, बहुत सारी किताबें, उसका अपना दावा, तो मैं से कौन उन पर गुनाह साबित कर सकता? वो बेगुनाह है, वो बेदाग है। पतरस कहता है तुम्हारी खलासी सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि और बेदाग बड़े, यही मसीह के बेश की बात खून से। मेरे लोगां दा दादू जेड़े खून दे कतरे बहने ने तेरी शान जलाली ना सिया, तेनू धन धन लोगी कहते। उसका खून मेरी और आपकी बका, मुझे और आपको भी रास्तबाज़ बनाता है, क्योंकि वो एक रास्तबाज़ है। पिलातुस ने कहा मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया। पिलातुस की बीवी ने उसको कहा कि रास्तबाज़ शख्स को तू दुख दे रहा। लिखा है वो हमारी तरह आजमाया गया पर बेगुनाह रहा। दुनिया की तारीख में, दुनिया
कुदरत के अवराह में, हिस्ट्री के अवराह में कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसपे लिखा हो कि यीशु इस गुनाह में पकड़ा, बल्कि वो गुनाह में पकड़ी हुई औरत जब यहूदी उसे लेकर आए, लगा तू इस पर क्या फतवा लगाता है, उसने कहा मारो पत्थर से इसको मार छोड़ो, इस बदी को मुझे मकामा पर बेगुनाह मारो, गुनाहगार को नहीं फरमाऊंगा। कितना हुक्म यीशु पत्थर मारने का, आप यूं जमीन दे सकते हैं। और उसने उंगली के साथ जब लोगों के गुनाह लिखे तो एक एक करके अपने पत्थर फेंक कर वापस चले। उसने कहा वो पत्थर मारो जो बेगुनाह। सच्चाई ये है कि तू साढ़े गुनाह दा करे हसा और जो तेनू करोगे दे सकता जवाब 130 लोग कहते हैं अगर तू हमारे गुनाहों को हिसाब किताब में लाए तो एक शख्स भी तेरे हुजूर खड़ा नहीं रह सकता। एक है खुदा का बेटा, इब्ने खुदा, खुदा का कलमा यीशु मसीह, जिसने मेरा और आपका गवाह देकर मुझे और आपको रास्तान बनाकर खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होने का इस्तेमाल इस लायक बना दिया क्या हम उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े और वो रास्तास यीशु रास्तास। नंबर 4 यूहन्ना अपने खतूत में उसे इब्ने खुदा कहता। यूहन्ना के खतूत और इंजील, बिलखसूस यूहन्ना की इंजील, उसका जो मर्कजी मजमून है वो है यीशु मसीह खुदा का बेटा, हकीकी खुदा, नूर से नूर, नूर जो रब नूर जुदा किया, अनुखातियां वाला जो रंग किया, आया खुद काला इंसान बन के गुनाहगारों के लाल सब किया, वो हमारे दरमियान रहा। और रसूल कहते हैं हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप की। रसूल कहते हैं वो लगता खुदा का बेटा है। रसूल कहते हैं उसके काम खुदा के बेटे जैसे, उसका किरदार, उसके अमाल, उसके अफवाह, वो अपने किरदार के हिसाब से खुदा का बेटा है। लोग की पत्थर मारा नसी हंसते रहा, खाता तेरे कमाल बयान करा, वो खुदा का बयान लेकर पत्थर खाता रहा, तमाचे खाए, थूका गया उसका, हत्या कमीज कलमा उसकी बात है। पर क्या गाली खाकर किसी नहीं देता, मार खाकर किसी को दम खाता भी नहीं। वो बेगुनाह, वो बे है, उसके हाथों ने कभी किसी को तमाचा नहीं दिया, उसने अपना खून बहने दिया ताकि मैं और आप बच, ताकि मेरी और आपकी खलासी। इसीलिए पतरस कहते हैं तुम्हारी खलासी सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग यानी उसी के वेश की खून से। मैं उर्दू जुबान का तालब हूँ, बेशकीमत
ऐसा लफ्ज पतरस इस्तेमाल करता है जो अपनी जात में यकता है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, बेशकीमत, जो कीमत से कहीं बड़ी है, कहीं दूर है, कहीं पर है, जिसकी दुनिया में कोई कीमत अदा नहीं कर सकती। आप अंदाजा करें, मसीह का वो खून जिसने पूरी दुनिया की कीमत दी है, उसकी कीमत पूरी दुनिया से भी बढ़, उससे मेरी और आपकी खलासी। नंबर 4, यीशु मसीह इब्ने खुदा। यूहन्ना कहता है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में होता है, तारीकी ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया और संत बनने का मैं और आप मसीह खुदा की कबूलियत करने के बाद खुदा के खानदान का हिस्सा, खुदा की बेटियां, खुदा के बेटे हैं। कैसा बड़ा इस्तेकाम है। नंबर 5, यूहन्ना का पहला खत पहले बाब की 2री आयत देखे जरा। ये जिनकी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर। वो बाप के साथ था, वो बाप में से निकलता है। कलमतुल्लाह का मतलब ये ही है, अल्लाह का कलमा। और कलमा हमेशा, कलमात हमेशा अंदर से बाहर, इसलिए वो बाप में से। बेटा जो लफ्ज है अरबी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब है में से निकला हुआ, और वो बाप में से निकलता है और उसका दावा दुरुस्त और सही है। मैं बाप में से निकलता है, मैं और मेरा बाप भी है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, और उसके काम बाप जैसे। नेचर को तब्दील करना, उसने काना गलील की शादी पर मुकद्दस मां के कहने पर पानी को मैं बना, यीशु पानी भी मैं बना दी थी। मूसा पानी का खून बना देता, यीशु पानी भी मैं बनाऊंगा। मूसा आसमान में तो मंगवाई रोटी, यीशु 5000 ले जाऊंगा। फिरौन का डूबता बेड़ा मूसा डूब देता, यीशु डूबते बेड़े पार करता। यीशु मसीह फर्क है। जो औरतों से पैदा हुए मूसा में से बहुत बड़ा, और यीशु से भी बड़ा। नंबर 6, यीशु मसीह आसमानी है। और उसने कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। और उसने कहा मैं जमीन का नहीं, इसलिए जमीन ने उसे कबूल ना किया। वो आसमान से था, जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने मरियम को कहा मुझे ना छू, मैं अभी तक अपने बाप के पास नहीं हूं।
चलते हैं। खुदा का कलाम कहता है आसमान पर कोई नहीं चला, मां सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। आसमान पर सिर्फ वो जा सकता है जिसे बाप ने जलाली करा, क्योंकि खुदा जलाली है। खुदा के जलाल में बशर नहीं जा सकता। और जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो बशर नहीं था, वो इलाही बन चुका था। इसलिए वो आसमान से उतरा है और आसमान पर वापस गया। नंबर 7, वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया। यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ। फिलिपियों का मुसन्नफ दूसरे बाब की 5वीं से 11वीं आयत में कहता है उसने अपने आप को खाली कर, खानों की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी सूरत में जाहिर हुआ और यहाँ तक करना बता रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत, वो बशर बना, उसने बशरियत इख्तियार की और उस बशरियत के अंदर अलूहियत की सारी बातें मुजस्सम होकर सुकूनत कर, वो भयंक वक्त दो जातों का संगम, वो इलाही अलूहियत की मामूली से मामूल और बशरियत, कामल खुदा और कामल इंसान। इसलिए उसने कहा तुम्हें कौन मुझ पर गुनाह कर, इसलिए उसने पानी को मैं बना दिया, निश्चित कर दिया। इसलिए उसने जन्म के अंधे को धोखा, मिट्टी सानी आंखें बनाकर उसके आंखें में लगाई और विश्वास। इसलिए उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जो मरा था उठा। इसलिए उसने कहा मेरा दोस्त रासर मर गया है, मुझे वहां जाना। उसने बात कहा कि क़यामत और ज़िंदगी में वो क़यामत और ज़िंदगी का एक प्यार है। क़यामत का मतलब है कायम, और वो कायम करने की कुदरत है और उसने पतरस को कायम किया। वो दुनिया का मुनज्जी होगा दुनिया में, क्योंकि यूहन्ना पहले हम खत चौथे बाब की 14वीं आयत में लिखा है बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी बनाया, उसने मुनज्जी बनाकर दुनिया में भेजा। फरिश्तों ने जब हमको कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत तो सारी उम्मत के वास्ते कि आज दाऊद के शहर बैतलहम हमारे लिए कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ। फरिश्ते ने मरियम को दलील दी कि तेरा बेटा मुनज्जी होगा, यीशु होगा, नजात देगा। फरिश्ते ने यूसुफ को कहा अपनी बीवी पर शक कर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, तो ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से इसका मतलब भी होना चाहिए। वो नजात लेकर, वो नजात दहिंदा बनकर मेरे और आपके पास और उसने सुधार कितनी यूहन्ना की दी में लिखा है। एक बड़ी चाकर औरत से बात की, उसने कहा तू जानती मैं कौन? मुझसे मांगती, मैं तुझे
जिंदगी का और उसने इस जमीन पर रहते हुए ये दावे किए कि वो जिंदगी का पानी, वो जिंदगी की रोटी, उसका बदन जो है वो जिंदगी की रोटी। देखा जिस रात को खिलाया गया उसने रोटी दी, शुक्र करके थोड़ी अल्लाह लो खाओ, ये मेरा बदन जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते। रोमी कोड़े में यीशु मसीह का बदन तोड़ तोड़ कर उसके बदन में से खून बहने और उसके जिस्म की गोटियां, उसका बदन मेरी खातर आपकी खातर बार बार तोड़ा, उसका खून बहाया गया ताकि हमारी खलासी मेरे लोगों का उद्धार हो। जेड़े खून दे कतरे करते तेरी शान चला ही बस तेनू धन रखो। यीशु मसीह मेरे और आपकी खातर जान दे देना। बाप का ये हौसला, बाप की ये अजीम मोहब्बत यूहन्ना की जिंदगी तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदगी। और मां कहते हैं इस आयत के अंदर पूरी बाइबल की रूह, ये आयत पूरी बाइबल को पेश करता है। पूरी बाइबल की रूह ये है कि खुदा ने गुनाहगार इंसान की बका नजात बहाली के लिए अपने बेटे को तजस्सुद में, जिस्म में, इंसानी लबादे में दुनिया में भेजा और उसके बेटे ने मेरे और आपके लिए अपनी जान सलीम पर कुर्बान कल बलि के सहारे पापी बोलते सूली चढ़ेगा लोग डरता है मुल्क साड़ा पड़ेगा लेकिन रसूल कहता है दूसरा यूहन्ना दूसरे बाब में, और वही हमारे गुनाहों का कफारा बल्कि तमाम दुनिया गुनाहों, तमाम दुनिया के गुनाहों आप तारीख को टटोल किसी शख्स के बारे में तारीख के अमरात में ये दर्ज नहीं करेगा कि वो सारी दुनिया के गुनाहों का मुकद्दस यूहन्ना रसूल, मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को फर्क है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को से अपनी तरफ आते देखता था, उसने कहा देखो ये खुदा खुदा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठाएगा। ऐसी शख्सियत उस जैसा कोई शख्स दुनिया में पैदा नहीं। वो आपकी जात में यकता है, वो अपने काम में बेनज़ीर, उसकी नज़ीर तो दुनिया की तारीख में, और वो यीशु मसीह, वो हमारे गुनाह उठा करके यूहन्ना की सेवा की 5वीं आयत वैसे ज़ाहिर हुआ कि गुनाहों को उठावे। आज पहला यूहन्ना 1:7 पे लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के नूर में, तो हमारी आपस में शनाख्त है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक। मेरी अजीज बहनों अगर हम खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का नूर, जैसे कहा दुनिया का नूर मैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में जन्नत, अगर हम उसके पैरों का
तो फिर वो आसानी बना सकता है। बल्कि लिखा है वो सच्चा और आदर, अगर हम उसके पीछे आए तो फिर वो हमें आदम की बुलाएगा। उसने मछलियां पकड़ते लोगों को कहा, जाल छोड़ो, मेरे पीछे आ जाओ, मछलियां पकड़ रहे हो, मैं तुमको आदमी पकड़ने वाले बनाऊंगा। किसी ने बड़ा जागीर लिखा है, जिन्हें मछलियां पकड़ रहे होते सन, आज बंदे पकड़ते हुए कोई तौबा बंदी करनी, लखा पापी करते। उसने मर्दी को मासूम की चौकी से कहा, मेरे पीछे। उसने जकई को दरख्त की टाट से कहा, नीचे उतर, क्योंकि आज तेरे घर में वो नजात देहिंदा, वो मुनज्जी है। उसने अपना खून बहाकर मेरी औलाद की बका हासिल कल बड़ी इंसान काफी बचते इंसान उनसे सूर्य चढ़िया दुख डाटा है चढ़िया उन सादा चढ़िया देखिए खून हम उस पर ईमान शगेतों ने यीशु पर ईमान की बुलंदी, दरोगे ने पलूस और सिराज से कहा, ऐसा हो क्या कि नहीं जानते, उन्होंने कहा तू खुदा यीशु। पतरस ने उसको कहा, खुदा यीशु उसी पर उसने कहा, इस समाज को हमने अपनी कुदरत से ठीक नहीं, जो मसीह पर ईमान ले आता है उसके अंदर मसीह आ जाता है और फिर मसीह की कुदरत उसके बदन से बसती है और लोग शिफाएं। काश हम उसे अपना विवेचन करें। आइए हम अपने उसका शुक्र, उसके नाम को मुबारक, वो दुनिया का मुनज्जी है, उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया। बाकी फमीदा आप तशरीफ लाएं आज के कलाम के लिए। माइक बाजी I am president. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती, आज के दिन का जो देख रहा हूँ। मैं तेरा शुक्र करती, खादम को आपके शरीर के इस्तेमाल की देख रहा हूँ। एक खादम ने बोला यीशु मसीह के बोले ऐसा होता, जो आज मांगे ऐसा तुम्हारी दिलों तुझे बच्चे आने लगा बापे ऐसा होता। आज अगर हमें जिंदगी का कलाम सी ऐसा होता, आज अगर बहुत सी बातों का कलाम सी ऐसा होता, खादम को आपके शरीर में इस्तेमाल कर ऐसा होता। जिधर जिधर तेरा खादम जाए ऐसा होता, तेरा कलाम फैला जाए ऐसा होता, लोग तौबा करने ऐसा होता, तेरी बात से तैयार होने ऐसा होता, वाकई में जिंदगी की रोटी है ऐसा होता, जिंदगी का पानी है ऐसा होता। तू जानता मेरे बेटा, मेरे बेटे मेरे पास आओ, तेरे कसरत का राम पाओ ऐसा होता, तेरे पास आइए ऐसा होता, कसरत का राम पाइए ऐसा होता। आज सबक दिने ऐसा होता, निकट निकट तेरी बात हो रही है ऐसा होता। आज वो आपके शरीर इस्तेमाल करना, तुम्हारे को छूने ऐसा होता, साथियों को छूने ऐसा होता, कसरत के साथ ऐसा होता, तुम साधन करते ऐसा होता, इसका बात ऐसा स्टाइल ऐसा होता। मैं तेरे हाथ में देती ऐसा होता, वाकई तो डॉक्टर का डॉक्टर ऐसा होता, कीमो का कीम ऐसा होता। मैं डॉक्टर का हाथ नहीं मांगती, तेरा हाथ मांगती ऐसा होता, तेरा शफकत वाला हाथ मांगती हूँ, तेरा रहमत वाला हाथ मांगती हूँ, तेरा बरकत वाला हाथ मांगती ऐसा होता। बेटे ते रहम करे ऐसा होता, जो तो गलती कर गई है उन्हें माफ कर, तू माफ करने की कुदरत रखता है ऐसा होता। वाकई तौबा
खुदा तेरा तकसीफ ने खुदा है तेरा पाप ने खुदा है वाकई मेरा जिंदा खुदा मौत रखता मेरा बरकत रखता मेरा कुव्वत है खुदा है खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ जब मांगा पाया खुदा जब मांगा भूमि से करना मैं दुआ में सुना खुदा आमीन।